Assalamualaikum 8th class. Today we will discuss about our science subject chapter number 2nd, page number 16. The topic of the chapter is title of the chapter is reproduction in plant. First of all, we will see what is the reproduction. Reproduction words comes from the reproduce. Reproduce या reproduction use होता है किसी भी organisms के लिए to continue their species, to continue to carry on their species. As you people know very well कि जो old things हमारी लाइफ में आती हैं वो निकलती जाती हैं, उनकी जगह लेने के लिए उनके कॉम्पिटेंट्स उनसे बेहतर न्यू ऑफस्प्रिंग्स आते हैं जो पुरानी जनरेशन्स के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं. तो रिप्रोडक्शन क्या प्रोसेस है? रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस which are present in living things, animals, either animals or plants, to continue their species. क्या है कि जो पुरानी आने वाली चीज़ें जो हमारी लाइफ से निकलती जा रही हैं उनकी कमी को पूरा करने के लिए, एक स्पीशीज़ को आगे चलाने के लिए जो प्रोसेस ज़रूरी है उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट जो है वो फ्लावर है. Both the male and female portion of the plant, female gametes of the plant, are present on the same flower. A flower consists of, we will discuss flower detailed in the 7th class. Now we will take a overview what is flower. You people must draw this diagram on your copies and label properly. As you know very well, the color portion of the plant known as the petal, the lower portion of the plant known as the sepal, which protect these petals when these are in the bud form. And stamen is the male reproductive portion of the plant. It consists of an anther and a filament. The carpel is the female portion of the plant and it consists of a stigma, style and the ovary. The nectar is present baseline of the petals. Nectar is a substance which attracts the insects to take their food. Now, these are all the terminologies which I have described to label to describe this diagram. You people must learn and draw this diagram on your copies. Come toward the detailing of the male and female portion of the plant. The male portion is collectively known as the stamen. The stamen consists of anther, which contains pollen grains and pollen sacs when it becomes mature. When the pollen grains become mature, pollen sac burst and these pollen grain moves toward the stigma of the female portion of the plant. The female portion of the plant consists of the stigma, that is the flat surface, style, which is a neck surface, and a ovary inside which ovule is formed. These are the reproductive organs of the plant. Now let's come toward what is the pollination. Pollination is the first step in the reproduction. पॉलिनेशन के प्रोसेस में क्या होते हैं, जो हमने ये एंथर पढ़े हैं, ये एंथर मूव होते हैं स्टिग्मा की तरफ. कैसे मूव होते हैं? इनके दो प्रोसेसेस होते हैं. एक को हम कहते हैं कि सेल्फ पोलिनेशन है, दूसरा क्रॉस पोलिनेशन है. सेल्फ पोलिनेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच एंथर pollen grains of the plant transfer to the same ovary. क्या है कि एक ही फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स हैं जब वो मेच्योर होकर बस्ट हुए हैं तो सेम स्टिग्मा के ऊपर फॉल करते हैं और ट्रांसफ़र हो रहे हैं ओव्यूल की तरफ. और जो हमारे पास क्रॉस पोलिनेशन है, क्रॉस पोलिनेशन में हमारे पास इधर बाय इंसेक्ट्स और बाय वेंट. क्या है कि जो ये हमारे पास पोलन ग्रेन्स हैं, पोलन ग्रेन्स जिस वक्त इंसेक्ट्स अपनी फूड की सर्च के लिए आते हैं तो नेक्टर के साथ उनके साथ स्टिक हो जाते हैं और ट्रांसफ़र हो जाते हैं टू द स्टिग्मा ऑफ एन अदर प्लांट. दिस डायग्राम शोज द क्रॉस pollination. Now let's see how the cross pollination occur by wind. You will see in this diagram a grass flower. These are the structure known as the anther. When these open, then pollen grains are ooze out.
ये पोलन सैक बस्ट होगा और पोलन ग्रेन्स बाहर निकलेंगे। तेज़ हवा के साथ ये पोलन ग्रेन्स किसी दूसरे प्लांट पे जाके गिरते हैं। ये हुक फॉर्मेशंस और ये विंग्स फॉर्मेशंस होती हैं, जो विंग्स इन्हें हवा में फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। ये जाके फिदरी जो स्टिग्मा है उसके साथ स्टिक हो जाते हैं। आप देखोगे यहाँ पे हुक्स हैं, जो ये विंग्स वाली स्ट्रक्चर्स हैं, जाके यहाँ पे टिंगल हो जाएंगे, यहाँ पे अटक जाएंगे और यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारे पास किसी एक प्लांट का जो पोलन ग्रेन है फॉल हो जाता है किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर, तो क्या पॉलिनेशन होगी? तो बच्चों नहीं, पॉलिनेशन उसी वक्त डन होगी अगर सेम स्पीशीज़ के पोलन ग्रेन्स सेम स्पीशीज़ के स्टिग्मा के ऊपर जाके फॉल होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। हमने देखा कि हमारे पास प्लांट के मेल एंड फीमेल पोर्शंस हैं, गैमीट्स हैं। जब ये कंबाइन हुए तो हमारे पास पॉलिनेशन का प्रोसेस हुआ। पॉलिनेशन में हमने क्रॉस पॉलिनेशन को और सेल्फ पॉलिनेशन को देखा। उसके बाद हमने इंसेक्ट्स और वेंट से देखा। जब पॉलिनेशन का प्रोसेस हो जाता है, पॉलिनेशन फॉलोड बाय द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ है कि हमारे पास जो पोलन ग्रेन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से स्टिग्मा पर आके फॉल होते हैं वो ग्रो करते हैं और ग्रो करने के बाद वो इनसाइड द ओवरी ओव्यूल्स तक रीच करते हैं। ये फ्यूज़ करते हैं ओव्यूल्स के साथ और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। जिस वक्त एग और एम्ब्रियो, एग और पोलन ग्रेन कंबाइन होते हैं तो हमारे पास सीड फॉर्मेशन होती है।